book and I came across some beautiful lines, rather sad lines. I would like to read them out to you. The worst type of crying wasn't the kind everybody could see. The wailing on street corners, the tearing of clothes. No, the worst kind of happened when your soul wept, and no matter what you did, there was no way to comfort it. A section withered and became a scar on the part of your soul that survived. For some people, their souls contained more scar tissue than life. This is what depression feels like. It's like the eternal sadness inside. जो WHO ने सर्वे करा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे उसमें भी they said that out of every 20 Indian one suffered from depression or certain kind of mental illness. कोविड टाइम्स में हम देख रहे हैं ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, स्पेशली बच्चों में भी ये काफी बढ़ता जा रहा है. तो ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड ये सैडनेस और डिप्रेशन में फर्क क्या है. So, I would request Dr. Payal to answer our questions. And before that, I would like to introduce Dr. Payal is a psychiatrist and a counselor. We have Meeta Gudgutia, who's the founder of Sipping Thoughts, and I'm your host for today. This is Meeta. So welcome, Dr. Payal, and welcome, Meeta, on the show. So, Dr. Payal, would you like to tell us what is the difference between regular sadness that we feel and depression? See, thank you for having me. It is a wonderful opportunity to reach out to a lot of people through your medium. See, when we talk about sadness, sadness is an emotion. We are humans, and as long as we are alive, we will have these emotions. So sadness is one of them, like how you feel happy, how you feel jealous, disgust sometimes, how you feel envy, how you feel angry. So all these are emotions. So we need to understand that sadness is an emotion, which means it may fade over the period of time. So there are certain triggers which makes us happy. There are certain triggers which can make us sad also. But it is important to understand that as emotion doesn't stay, like we are not happy always. It is also unrealistic. How we are not angry always, like we are not in a temper always. The same way, we are not going to stay sad for the rest of our lives. So there are going to be times where this sadness will reduce and we'll have another emotions. And when we talk about depression, in general, depression is not a mood. It's an illness. It's a mental illness. So when we talk that we are depressed, so it means a collective issue which is going in our head. So it's just not the emotion, it's also the behavior and which has changed over the period of time. So person is going to will not feel like working. They will not feel like enjoying things like they usually do, like sports, housework, shopping, talking with family and friends, attending functions. They may not feel energetic for work. So there is going to be concentration related issues. There is going to be a significant changes in terms of sleep, appetite, how a person generally behaves. So we need to understand that sadness is something that we all feel on a day-to-day basis. But on a day-to-day basis, we all don't feel. There are some people that Dr. Payal, there is a network issue. Will you try switching off the camera and try? Dr. Payal, can you try switching off your camera for a while? So basically the network would be a little better. Yes. So what I understood from Dr. Payal, what she was saying was, जो मुझे समझ में आया, I mean, Meeta, if you've understood the same thing, is that जो हमारी जो sadness होती है या हमारी जो खुशी होती है वो momentary होती है. It just आज हम दुखी हैं, कल हम खुश हैं. There's not something which is like regular, persistent नहीं होती है. Whereas depression में आपकी वो जो feeling होती है वो लगातार होती है. You're sad for days. So Meenal, let's start from here that it's been a very, very sensitive topic. बहुत दिनों से we have been thinking to discuss it, kind of bring it out. तो situation तीन होती है, ठीक है?
आपको नहीं पता चलता है कि यू आर नॉर्मली, मूड स्विंग्स होते हैं, अगर आज आप कई दिनों तक अनहैप्पी हो, हैप्पी हो, दूसरा सिचुएशन आता है जब आप सैड हो, तीसरी सिचुएशन आती है जब आप डिप्रेस्ड हो या बॉर्डर लाइन डिप्रेस्ड हो। प्रॉब्लम इज कि एज अ नॉर्मल पर्सन आई विल नेवर नो दैट मैं कौन सी बास्केट में हूँ। तो सबसे बड़ी वरी वही होती है कि जब आपको ये नहीं पता है कि मैं ये एक पासिंग फेज है या एक मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं अनहैप्पी हूँ। सो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन वेयर till the time Dr. Payal is struggling with a network, we can ask our audience कि हमारी सबकी opinion क्या है। Dr. Payal is back, I think. Yeah, there have been times that, जैसे पहले knowledge नहीं थी कि depression के बारे में, अब people have become more conscious over the period of time. So, okay, Damini's message. Dr. Payal, are you there? Are you listening to us? Yes. I'm listening to you. So, Yes. yeah, while you were joining, Sorry for the issues. what Meeta said was that we were talking about what early, when do you know that you are actually getting depressed or you are Let near? me put it rightly, Meenal. Let me put it rightly. Dr. Meenal, I said normally people are in three situations. One is we go through often on sadness in life. हम उसको लेके नहीं बैठ सकते कि अच्छा अब तो हमें डिप्रेशन हो गई या हम सैड हैं। एक होता है कि परसिस्टेंट हम सैडनेस कहीं ना कहीं लाइफ में रहती है, एक होता है हम डिप्रेस्ड हो गए। एज अ लेमैन हमें कभी नहीं पता चलता, एटलीस्ट आई फील द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दैट एंड द फैमिली हु इज विटनेसिंग इट। तो इस डिस्टिंक्शन का हमारा सबसे पहला चैलेंज है कि हाउ डू वी डिसाइड दैट दिस इज दिस सिचुएशन। सॉरी, जैसे आपने बोला कि सैडनेस, जैसे मैंने आपको समझाया कि एक सैडनेस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चली जाती है। जैसे हमने बोला परसिस्टेंट सैडनेस, कई लोग बाकी सारी चीजें अच्छी है, मतलब दे आर गोइंग टू वर्क, वो काम पे जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, बट उनको एक उदासी कंटिन्यूस चालू है, एक परसिस्टेंट सैडनेस है। This is also an illness, which in our term we call as dysthymia. Meaning एक उदासी है जो कभी कम नहीं होती, एक खुशी का दौर कभी लगता नहीं है, मन में कभी खुशी महसूस नहीं होती। तो ये एक परसिस्टेंट सैडनेस जो है, ये एक तरह का इलनेस ही होता है जिसको डिस्थाइमिया बोलते हैं। नॉट क्लियरली लाइक डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो उसमें इंसान जो है पहले जैसा था वैसा महसूस नहीं करता, साथ में महसूस करने के साथ में उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। परिवार वालों को समझ आता है कि यार ये घुल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, खुश नहीं दिखता है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। जॉब में भी जो है डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, फैमिली में भी बच्चे और वाइफ से कभी बात नहीं करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा जल्दी आता है। तो देयर इज एन ओवरऑल चेंज इन द पर्सन। द पर्सन इज नॉट द सेम हाउ ही वाज। So that is depression. So it's very unlikely to miss this. If at all, there are certain types of depression. कई प्रकार के depression होते हैं जिसमें हमेशा इंसान रोएगा नहीं। हर बार इंसान डिप्रेस्ड इंसान जो अंदर महसूस करता है वो कई बार बाहर भी नहीं बताते हैं। तो जिसको हम लोग स्माइलिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं, मतलब हम सब कर रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, जब जरूरत है तो हम मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो अंदर की फीलिंग है वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, वो हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के डिप्रेशन होते हैं और डिप्रेशन के बहुत सारे चेहरे होते हैं, कई रूप होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये सिम्टम्स हैं तो शायद ये मेरे में प्रॉब्लम है, और मुझ में कितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आया है, मेरे बिहेवियर में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे एहसास में, फीलिंग में क्या चेंज आया है, वो एक इंसान ही बता सकता है। वो बहुत जरूरी है कि हम उनसे खुल के बात करें। डॉक्टर पायल, हमें उदास होने का बहाना नहीं होता है, हम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अच्छा मेरे यहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं उदास हूँ, मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो गई तो मैं उदास हूँ, मेरी सास का नेचर ठीक नहीं है तो मैं उदास हूँ। तो हमेशा हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि नहीं कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उदास होना तो बनता है। एक आपने बहुत ही अच्छी बात करी, क्योंकि क्या है हमारे जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है,
वो ऐसी है कि हम उदास ही रहना चाहते हैं। इंसान का जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा नेगेटिव बायस है। मतलब आप हमेशा देखेंगे कि दो चीजें हैं, एक बहुत खूबसूरत है और एक थोड़ी सी कम है। तो हमारा ध्यान इसकी खूबसूरती को निहारने में और तारीफ करने में नहीं जाएगा, इसका क्रिटिसाइज करने में जाएगा। इट इज अ यूनिवर्सल नेचर। तो ये जो है वो एक यूनिवर्सल नेचर है। इट्स हाउ आवर ब्रेन इज डेवलप्ड, हाउ आवर वायरिंग इज डन इन द ब्रेन। तो एक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना या नेगेटिविटी के बारे में बात करना इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि पॉजिटिव बात करने के लिए मीनिंग यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ सो दैट you overcome that negativity. So it needs a constant work. It's not a job of 1 month or 3 months. It from the day you're born, हमको मेहनत करती रहनी पड़ेगी पॉजिटिव रहने के लिए. So Meenal, after this I'll give this to you. I know that you have like a lot of questions. हमें एक और सिचुएशन में क्या होती है कि नॉर्मली जो आपके आसपास लोग मिलते हैं, आपके वेल विशर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, काउंट योर ब्लेसिंग। तब आप और डंप में चले जाते हो कि यार सच में मेरी लाइफ में तो सब बहुत अच्छा है, नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हूँ। तो मतलब ये आप हमेशा एक गेम में ऊपर नीचे चलते रहते हो कि यार आप सही भी बोल रहे हो लेकिन मैं खुश भी नहीं हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन आई थिंक हर किसी की जिंदगी में आती है, हर किसी की जिंदगी में रोजमर्रे में आती सी जैसा आपने बोला, सी जिंदगी तो सेम नहीं रहती। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा ही रहते हैं और इसी का नाम जिंदगी है। और बस यही है कि कभी अच्छे दिन होंगे, कभी बुरे दिन होंगे, कभी ऐसे दिन होंगे जिसमें हमें लगेगा कि यार इससे बुरी तो कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ, लेकिन और उसी के दिन अगले दिन हमको अच्छा महसूस होगा। तो लाइफ एक ऐसा नहीं है कि हम अकेले दौड़ रहे हैं, ये ऐसी रेस नहीं है जिसमें हम अकेले दौड़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शारीरिक है, मानसिक है, हार्मोनल चेंजेस हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, फाइनेंसेस, पार्टनर्स की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, तो जॉब, सो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाता है इन सब चीजों में। तो एक चीजों के बलबूते पे तो जिंदगी नहीं होती। हाँ, कई बार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि यार सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिविटी को ओवरकम करने में हमें समय लगता है। इसी चीज पे हमें वर्क करना है। एंड सेकंड चीज है थोड़ा ये जो फेज है, अगर वो फेज रहे तो चिंता की बात नहीं है। मतलब ये जो थोड़ा उतार चढ़ाव है वो जिंदगी का जैसे चलता है वैसे चलता रहे तो ठीक है, मीनिंग लाइफ इज द वे इट इज। बट अगर थोड़ा उतार आया लेकिन आपके नेचर और आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आ गया कि आप उभर के ही नहीं आ पा रहे हैं, तो इट सीम्स लाइक डिप्रेशन। या सब कुछ स्टेबल है, एक चीज में प्रॉब्लम है लेकिन कांस्टेंट नेगेटिविटी है, तो हो सकता है डिप्रेशन है। साथ ही साथ कुछ चीजें पर्सनैलिटी होती है, मीनिंग हर एक इंसान सेम बिहेव नहीं करता। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वेरी स्टूपिड एंड वेरी क्यूट एग्जाम्पल। अभी आप एक बिल्डिंग में सब एंटर कर रहे हैं, आपने मीनल एक बिल्डिंग में एंटर किया और वो गार्ड नीचे बैठ के कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो उन्हें गुस्से में गालियां देना शुरू कर दी। तो मीनल निकली, स्माइल करके निकल गई। आप आए, आपने बोला ऐसे क्यों बात कर रहे हो, गलत बात है। और मैं निकली और मैंने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि गाली कैसे दिया, और मैंने मारा पिटाई शुरू कर दी। तो स्टिमुलाई सेम है पर हम सबका रिएक्शन अलग है। क्यों? क्योंकि हम पैदा अलग हुए, हमारी हमारी लाइफ के एनवायरमेंट्स अलग है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है। तो हर इंसान अलग बिहेव करेगा हर लाइफ की सिचुएशंस पे। तो एक छोटे से ट्रिगर में मैं इतना रिएक्ट कर रही थी, आपने इतना किया, मीनल ने कुछ नहीं किया। तो हमें ये भी समझना है कि डिप्रेशन या नेगेटिविटी के साथ हमारे नेचर का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इट नीड्स कांस्टेंट अवेयरनेस कि मैं कैसे इंसान हूँ, मेरा नेचर कैसा है, एंड हाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे लिए डिप्रेशन के सिम्टम्स कैसे हैं, या मेरे को डिप्रेशन है या नहीं है, या एक फेज है और चला जाएगा। Agreed. So, Dr. Payal, like I'll get straight to the point. Like, what are the causes of depression? तो मीता brought out one aspect कि लोग ने बोल दिया कि आपके पास सब कुछ है, and then and you feeling कि नहीं है, but I shouldn't be sad, but still I'm feeling sad. But there are other aspects also, some wiring in the brain, maybe some like health issue. Like, what are the causes of depression? See, depression is not because of one factor. So there are many risk factors, many causes of depression.
The first thing, it's a biological illness, meaning जिस तरह से hypertension, diabetes, thyroid एक biological reasons की वजह से पैदा होते हैं, उसी तरह से depression भी एक biological reasons की वजह से होता है. जैसे कि कुछ serotonin changes होते हैं, बहुत सारे neurochemicals होते हैं हमारे brain में और आपके मेरे सबके दिमाग में होते हैं, और इनका काम होता है हमें रेगुलेट करते रहना. ये कांस्टेंट काम करते रहते हैं दिमाग में ताकि हम खुश रहे, हम संतुष्ट रहे, सोए, खाए पिए, अपनी लाइफ एंजॉय करे, कभी थोड़ा एंग्शियस हो, थोड़ा नर्वस हो, लेकिन वापस आ जाए ट्रैक पे. तो जब इनका इम्बैलेंस होता है तब डिप्रेशन की सिम्टम्स आ सकते हैं. तो ये इम्बैलेंस क्यों होता है? जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण है. फैमिली हिस्ट्री में अगर डिप्रेशन हो तो आपको हो सकता है, या आपको पर्टिकुलर ऐसा जीन मिला हो जिसके कारण डिप्रेशन के सिम्टम्स हुए तो हो सकता है. फिर आता है रिस्क फैक्टर्स, भी आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ लॉन्ग इलनेसेस हैं, कई लोगों को सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, बैक एक्स कांस्टेंट रहते हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो सकते हैं, कई तरह के चेंजेस, सडन चेंजेस, लाइक अभी जो हमने बहुत पाया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड, लोगों के रिलेशनशिप में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, लोगों के फाइनेंसेस में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, जॉब लॉस, मीनिंग समथिंग विच रिक्वायर्स आवर माइंड एंड बॉडी टू वर्क मोर देन व्हाट इट इज यूज्ड टू. तो इस तरह के स्ट्रेस की वजह से हो सकता है. तो आपकी पर्सनैलिटी एक रीजन हो सकती है, जैसा मैंने डिस्कस किया कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका नेचर कैसा है. तो ये सारी चीजें जब मतलब मिलके कभी कभी आपको डिप्रेशन के लिए प्रोन कर देती है. सो डॉक्टर, एक चीज आप बताना, जब आप ये बोल रहे थे तो यू सेड कि केमिकल इम्बैलेंस इन द माइंड. तो व्हेन यू गो टू अ psychiatrist, does it get established that okay, it is purely chemical imbalance, or is there any scope of doubt कि I could be and I won't be? So like a test, can it be established कि I am for sure depressed? There are many tests जो कि रिसर्च लेवल पे होते हैं. There are many tests जैसे कि लोग करते हैं, न्यूरोकेमिकल टेस्ट होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन लेवल्स एंड एवरीथिंग, बट दे स्टिल एट द रिसर्च लेवल. So at present when you go to a psychiatrist or a therapist, so generally what they do is they do a detailed history taking, मतलब काफी गहराई में आपसे बातें करते हैं. आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड हम लोग पूरा समझते हैं आपकी फैमिली कैसी थी, मतलब आपका एनवायरनमेंट, आपका नेचर और चीजें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है. तो जैसा आप हमें सिम्टम्स बताते हैं उसके बेसिस पे भी अंडरस्टैंड कि हाँ दिस केमिकल से ये सिम्टम्स आते हैं, and that is how we come to a diagnosis. And we work based on a book which is like a Bible for us, like our practice is based on that. It's like a holy book for us. We work on DSM and ICD. So these are criteria books. तो उनके बेसिस पे वो क्राइटेरियाज को डिवाइड किया है हमने, और उनके बेसिस पे हम वर्क करते हैं. एंड उस पे हम लोग डायग्नोस करते हैं कि दिस पर्सन हैज अ डिप्रेशन और दिस इज एंजाइटी. और अगर रिसर्च पर्सपेक्टिव से लोग चाहते हैं कि टेस्ट करें, तो दीज केमिकल्स आल्सो यू कैन टेस्ट दीज केमिकल्स इन द लैब्स वेरी इजीली. बट पर से इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूजेज नहीं होता है, बिकॉज when we do counseling and therapy and when we do if there is a requirement of medication, so we know where we are landing and we know somewhere down the line this will help the patient and this may not. Okay, Dr. Payal, there is another question from our audience. Can depression be short-lived? Means can it come and go itself with time, or in all the types of depression we need to work for it? If Adya wants to ask, we can get her on, like she can unmute herself and ask the question. Adya Thakur, are you there? So we'll take up the question for her. I think she's not responding. So I think what she is asking, if the depression can be... Yes, yes. She wants Hello, to ma'am, I'm here. yeah, please tell me. Yeah, Please I ask just the wanted question. to ask, like, sometimes we feel depressed. Like, today I'm depressed, again tomorrow I'll be, and after it I'll be all right. Like, that problem is gone, and I will not be depressed anymore. So I just wanted to know about it. Does it like we need to work for it, or it can go itself? Can I answer? Yeah. Hi, Anya.
A very nice question, Ade. Yeah. See, when you're saying that आज कुछ problem आया and I was depressed, and yesterday वो problem चला गया, then I'm not depressed. Then it means you're not depressed at all. You're sad. Like how today you got a result and you had good marks, you feel happy. And tomorrow, if there is a fight with your friend, you feel angry. The same way, when there is something which as a trigger, ऐसा कोई stimuli है जो ऐसा कुछ incident है जिंदगी में जिसकी वजह से आप उदास महसूस करोगे, तो आप उदास महसूस करोगे और उदास फील करोगे, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है। सी डिप्रेशन में जैसा मैंने आपको बोला, आप उदास तो महसूस करोगे और उस उदासी में आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, पीने का मन नहीं करेगा, आप कहीं फोकस नहीं कर पाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे, आप कुछ करने की हिम्मत अंदर से नहीं आएगी, बार बार नेगेटिव ख्याल, ऐसे लगेगा घर छोड़ के चले जाओ, मेरी जिंदगी किसी मतलब की नहीं है, मुझे नेगेटिव ऐसे ख्याल जो नहीं आने चाहिए, खुदकुशी करने के, खुद को हार्म करने के ऐसे ख्याल आए, और वो एक दिन दो दिन नहीं रहते हैं, वो विद द पीरियड ऑफ टाइम 2 weeks 3 weeks परसिस्टेंट, मतलब दे आर देयर कॉन्स्टेंटली, नो मैटर व्हाट आप कोशिश कर रहे हैं। आप कई बार हम कोशिश करते हैं कि चलो फैमिली से बात करें, फ्रेंड से बात करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, बट इट स्टेज, इट डजंट गो एनीवेयर, देन यू आर डिप्रेस्ड, अदरवाइज वी फील सैड। Very thank you, Dr. Payal. I got to know, because even I am like half the time I'm struggling कि मेरे को depression नहीं, because अब जैसे थोड़ा पता चलने लग गया depression के बारे में. I want to ask you another question is like, you know, from my personal experience, like I have had people around me in my family or friends who I feel are depressed, but they are living in denial. So से मैं जिससे कहूंगी कि डॉक्टर को दिखा लो, साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, तो जिससे अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना अभी भी, अगर आप मेट्रोज की बात करते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अभी भी अगर इफ यू टॉक अबाउट बी टाउन्स एंड सी टाउन्स, अच्छा मेरे को मेरा दिमाग सही है, like what are you talking? So how do one convince these people to go visit a psychiatrist and tell them it's okay? जैसे कहीं और दर्द होता है वैसे दिमाग की परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. How do we break that social taboo and how do we convince them? See, first is कि ये जो आपने बोला बहुत सही है कि लोग, बिल्कुल सही बात आपने उठाई कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो डायबिटीज का इलाज करने जा सकते हैं, वो बीपी का इलाज करने जाएंगे, सर दर्द का इलाज करने जाएंगे, लेकिन डिप्रेशन के बारे में डिप्रेशन के डॉक्टर के पास जाने से डरेंगे। सी ये चीज है कि जब हमारे चाहने वाले हमारे फैमिली मेंबर्स को अगर ऐसा हमको नोटिस में होता है तो हम क्या करें? कई बार फैमिली मेंबर्स पूछते हैं कि मैं क्या करूं, जैसे आपने बोला। तो फर्स्ट इज कि एक चीज समझे कि हम उसको लेबल ना करें, जो है कोशिश ना करें कि ये तुमको ये प्रॉब्लम है, शायद चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सुनते हैं उनकी बातें, उनके मन में क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, सुने। दूसरा है कि उनको बोले कि कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ जाके खुल के बात करनी है किसी के भी पास। अभी वो थेरेपिस्ट के पास जाना है, जनरल फिजिशियन के पास जाना है, जिनके साथ उनका फैमिली डॉक्टर, जिनके साथ उनका अच्छा रैपो है, उनके पास जाके आपके मन में जो है वो बोल दीजिए। फिर एक ये है कि हो सकता है उसी लेवल पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए। कई बार वेंट आउट करने से, बात करने से भी कई चीजों की थोड़ी प्रॉब्लम 50% रिड्यूस हो जाती है। फिर एक एक्सटर्नल न्यूट्रल एजेंट को इन्वॉल्व करना, मतलब जिनके साथ आपका या उनका कुछ मतलब ऐसा एक अटैचमेंट नहीं है, मीनिंग कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई डिस्टेंट रिलेटिव्स या नेबर या उनके फ्रेंड्स, कि उनको उनसे इस तरह का इंटरेक्शन करना ताकि वो उनको इनकरेज कर सके कि मैंने भी ऐसा किया था, या मैं भी गए थे, या हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस था, तो हम जाके सिर्फ आपको बात शेयर करनी है। दूसरा ये भी समझना जरूरी है कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ मानसिक रोगों के, मतलब ऐसा नहीं कि वो पागलपन के डॉक्टर हैं। हम लोगों को थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा इरिटेशन, रिलेशनशिप के इश्यूज जो होने लगते हैं, उनके बारे में भी आप बात करने के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि दवाई भी ना की जरूरत भी ना पड़े, राइट? हो सकता है कि सिर्फ बात करके चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, या हो सकता है कि उनको कुछ नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ चीजें पार्ट ऑफ अपनी एजिंग प्रोसेस भी होती है, कुछ चीजें फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होते हैं।
कुछ चीजें स्ट्रेस, जॉब चेंजेस, फैमिली बढ़ती है तो हमारे नेचर में चेंजेस आते हैं, तो वो थोड़ा एक इंकरेजमेंट की चलो सिर्फ जाके बात करेंगे, हम सब जाएंगे एज अ फैमिली, सब जाएंगे, सब अपनी अपनी बातें को शेयर करेंगे, फिर लगा कि कहीं प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। या ऐसा भी है कि इंकरेज द थर्ड पर्सन, उनको इन्वॉल्व करें कि ऐसे, या ऐसे सेशंस में उनको इनकरेज करना, ऐसे वीडियोस दिखाना, बात करना कि देखो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, शायद जो आपको भी महसूस हो रही है, इनमें से ऐसी कोई चीजें हैं क्या, तो ये चीजें उनको भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ यार कुछ रिलेशन, को रिलेशन कि हाँ ये चीजें हैं, ये मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो लेट्स गो एंड सी करो। Thank you for answering my question, Dr. Payal. And that was a very good idea. When you said कि चलो पूरी family चलते दिखाकर आते हैं, ना कि मैं अपनी बात कहूँगी, so probably that child or the person doesn't feel कि मुझे ये लोग कुछ समझ रहे हैं, you know, because it is very, yeah, because we have actually faced that issue that convincing the person to go, it's not easy. It's just not easy. When So, Dr. Payal was speaking, there was a thought that was coming to my mind कि अगर दुनिया में एस्ट्रोलॉजर की जगह हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाने लग जाएं तो हमारी प्रॉब्लम शायद इजियर सॉल्व होएगी. Somehow we have to change that designation. तो अभी भी मीता, वेरी ऑनेस्टली आई नो केसेस, डिप्रेशन के केसेस हैं, बिकॉज बहुत क्लियर दिख रहे हैं, और अभी भी वो झाड़ फूक हो रही है. हाँ, दौरे ताबीज करवा लो या फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो कि मेरा टाइम कब ठीक होएगा, और आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. आई एम सॉरी टू से बट दिस इज वी स्टिल फंक्शन लाइक दैट. एस्ट्रोलॉजर खुद बता देता है, कुंडली में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बता देता है, सोल्यूशन भी बता देता है कि पत्थर पहन लो, आपको अभी इनके मंगल और इनके शनि में बैठा हुआ है, बस इसीलिए आपको दिमाग की परेशानी है, पहन लो सब ठीक हो जाएगा. तो चलिए आ रहे हो, ट्रीटमेंट भी हो ही जा रहे हैं. See, you're very true. See, these are all based on some sciences. See, जिस तरह से हमारी प्राइमिंग होती है, तो अभी जैसे आपका जो हम मतलब जो हम लोग अभी जिस जनरेशन में है, नाउ वी टॉकिंग अबाउट इट. तो पहले के जनरेशन में वो बात नहीं होती थी. पहले के जनरेशन में अभी भी लोग सोचते थे कि एस्ट्रोलॉजी, उसमें बिलीव था, तो अभी वो उनको सर्कुलेट हुआ है. आप और मैं अभी इस बारे में बात करें, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ऑफ एडवांटेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम सब बात कर तो रहे हैं इन चीजों के बारे में, तो एटलीस्ट लोगों को पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है. That was the whole idea, Dr. Payal. Meanwhile, I think there are so many people. Let's bring audience in. So, Ms. Seema Mohta, would you like to ask something? So I'm just going by the sequence we've received the messages. Seema Mohta, then there is Sween Saini. Do you guys want Jashan Singh? Abhi Seema ji is here, okay. Hello everyone. Ma'am, I just wanted to say, like in 2000, like I was under the influence of that Shani ki Sade Sati, and exactly during that duration of 5-6 years, I had a lot of problem. I was into depression, but as astrologers had said in 2007, I was completely well. So like even I took medicines and all, it didn't have any effect during that period. Okay. See, again, depending on your expectations and depending on the symptoms, तो उसमें ऐसा था कि डिप्रेशन था, एंजाइटी था, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. We are not against any science. To be very frank, I believe in all the sciences because every science, हर तरह का साइंस का एक बेसिस होता है, लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, और आपका बिलीफ सिस्टम आपको जिसकी तरफ अट्रैक्ट करे और आपको जिससे सहायता मिले वो अच्छा है. तो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स जब भी आते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ आप बिलीव करते हैं, फेथ है, आप करिए, बिल्कुल करिए, पर दबाव मत बंद करिए, आना मत बंद करिए, बस जिस चीज में आपको बिलीफ है आप वो करिए. पर अगेन आई एम सेइंग कि unfortunately the kind of experiences जो आपको हुए कि medicine had not helped, depending on क्या symptoms थे, क्या side effects हुए, क्या medication start करी थी, कैसा था process, तो वो सारा जरूरी है. See, another thing is अगर हम depression या anxiety को untreated भी छोड़ देते हैं, तो वो कुछ समय में हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो धीरे धीरे रिकवर करता है, बट उसको काफी समय लगता है और काफी चीजें डिस्टर्ब करने के बाद वो अपने आप ठीक होता है. Another thing is जैसे सिचुएशन, सी डिप्रेशन सिचुएशन के कारण एग्रीवेट हो सकता है,
लेकिन डिप्रेशन सिचुएशन के कारण ही नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सिचुएशन अगर अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो उस जैसे कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, एनीथिंग, एनी चेंज इन द फैमिली, तो उसके कारण हमें उदास महसूस हो सकता है। पर जब तक वो सिचुएशन नहीं जाएगी तब तक तो उदास लगेगा ही। और दूसरा है, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, मेडिकेशन, हम हमारा थ्रेशोल्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। दवा लेके, अगेन अ वेरी क्रूअल एग्जांपल, मैं दवा लेके मेरी मदर इन लॉ को थोड़ी चेंज कर सकती हूँ। मैं मेरा थ्रेशोल्ड इम्प्रूव कर सकती हूँ। इफ आई हैव एन इशू विथ हर, आई हैव टू सॉर्ट इट आउट, आई हैव टू टॉक विथ हर। सिर्फ मैं ऐसे जाऊं कि काउंसलिंग में करूंगी और उसमें चेंजेस आएगा, ऐसा नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, हम दोनों को उसको सॉल्व करना है, हम दोनों को बात करनी है, तो वो चीजें होंगी। अ लॉट ऑफ टाइम माय क्लाइंट्स ऑलवेज टेल मी कि अरे दिस इज द प्रॉब्लम, इस वजह से मुझे डिप्रेशन है। मैं बोलती हूँ उसकी वजह से डिप्रेशन नहीं हो रहा है, डिप्रेशन इंटरनल है। हम ट्रीटमेंट और काउंसलिंग से आपका थ्रेशोल्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब बर्दाश्त, जो हम कहते हैं ना कि जो परेशानियां हैं उनको झेलने की जब आपकी शक्ति बढ़ जाती है, बिकॉज परेशानी इट्स इनएविटेबल, जिंदगी में कुछ ना कुछ Yeah. चलता ही रहता है, सो यू जस्ट हैव टू इंक्रीज योर थ्रेशोल्ड। Yes. इट्स अ वेरी mindful thing what you said. We have a question. So if the person close to you is depressed, will it be right to blame yourself or not understanding him or her? Depending on the person that we're talking in context, see, it is a little difficult for anyone to understand something new. For example, if I am in my, I've been practicing since the 7 years, I've read my science and I'm doing this last 20 years. So अभी अगर मुझे साइकाट्री के अलावा कुछ और सवालात पूछे जाएं तो मैं शायद उसको नहीं समझ पाऊंगी जितने अच्छे से मैं ये चीज को समझ सकती हूँ। तो अगर आप मुझे अभी टेक्निकल कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं नहीं जवाब दे सकती, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अवेयर नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये इसलिए मुझे जानकारी नहीं, पर अगर मैं कोशिश करूंगी तो शायद मैं सीख सकती हूँ, राइट? तो द सेम थिंग, कई बार फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पाते, कई बार चीजें बहुत महीने तक रह जाती है, 1 महीना 2 महीना, वो नहीं समझ पाते फीलिंग्स को। तो और फिर वो गिल्ट में आते हैं हमारे पास, काफी रिग्रेट करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, ठीक हो चुका होता, या ऐसी चीजें नहीं होती। मैं उनको ये समझाती हूँ क्योंकि आप इक्विप्ड नहीं थे, आप अवेयर नहीं थे, इसलिए आपसे ये मिस हो गया, पर आपकी इंटेंशंस तो है समझने की, ये जरूरी है। वी आर ऑल नॉट बॉर्न विद ऑल टैलेंट्स, द इंटेंशंस आर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको लग रहा है आप नहीं समझ पा रहे हो, तो take them to a psychologist, take them to a therapist, take them to a psychiatrist, जो आपको और आपकी पेशेंट, आपके लव्ड वंस जो उनको तकलीफ है उनको समझने में मदद करेंगे, और धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। Dr. Payal, this was such a nice thing to say, कि हम इतने perfect नहीं है, हमें सब चीजें नहीं आती. There's always scope to learn and the intent is there to learn. So next question we want to take from Mr. Jashan Singh. He's raised hands. Mr. Jashan Singh, can you unmute yourself once again? Yes, ma'am. Good evening. Yes, good evening, sir. Okay. Ma'am, first of all, what is the time frame of sadness and depression, ma'am? Second question I would like to ask is, ma'am, how to understand your belief system and how to manage it? And my third question is in the row is that where is it currently in India in mental health state, ma'am? Because with the respect of awareness and its remedies, ma'am. See, as we discussed about sadness, sadness is temporary, meaning उसका कोई time frame as such नहीं होता है। Temporary meaning वो आज नहीं तो कल जाएगी, तो वो आपके नेचर और आपके सिचुएशन के बेस्ड पे। तो अगर सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक है या बहुत ट्रॉमेटिक कुछ इंसिडेंट है तो हो सकता है उसको थोड़ा समय जाए, लाइक 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। दूसरी चीज है कि हम दूसरी चीज आती है डिप्रेशन। सी, डिप्रेशन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो है डिप्रेशन का जो टाइम 2 to 3 वीक्स का। तो और उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा बिलीफ सिस्टम, तो बिलीफ सिस्टम के लिए see, again we are talking about depression, cognitive behavior therapy, किस चीज के बारे में? हम हर इंसान का एक बिलीफ सिस्टम अलग होता है, हम उसके बेसिस पे वर्क करते हैं। See,
फॉर एग्जाम्पल आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे आपका एक नजरिया डेवलप होता है, और उस नजरिए के बेसिस पे हम जनरली अपनी दिनचर्या जो है हम उसको व्यतीत करते हैं. And in terms of mental illness in India, see, there is a significant growth. How things were 10 years back, now it has got significantly better. Meaning people are talking about it, they are getting aware about it. छोटे छोटे शहरों में भी काफी अवेयरनेस हो रही है, साइकेट्रिस्ट जाके वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग मेडिकेशंस और काउंसलिंग की हेल्प ले रहे हैं. तो what we see every day, there is a real change. And सारे सेक्टर में, मीनिंग just not कि only educated or affluent people talk about psychiatry. Everybody is now talking about mental illnesses, and it is getting better. Yes, and Dr. Pyle, I feel after the stars, after like say Deepika Padukone talked about it, after a lot of stars start talking about it, it's become even more convenient. I think comfortable, not convenient, to talk about it. I think is she disconnected? No, she's back. And leading to this, I have a question, Dr. Payal. Why there's an increase in depression now? Every second family, you can see that there's some kind of a health issue, mental health issue. See, क्यों बढ़ रही है? yeah. See, generally पहले भी जैसा था situation, it's the same अभी भी. Does that कि लोग थोड़े aware हो रहे हैं और लोग उसके बारे में आके बात करने लगे. I think we lost her. Anyways, she will come back. Meeta, do you think, Meeta, even like you are an experienced person, क्या आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग भी कारण होता है? बिकॉज आई हैव सीन इन माई फैमिली कि डिप्रेशन में वो लोग हैं जो ज्यादा सोचते थे सारा टाइम बैठ के, हर चीज को, कोई छोटी सी भी बात भी होगी तो वो बहुत दिन तक सोचे जा रहे. नहीं मीनल, सोचते हम सब हैं, ऐसा नहीं हम नहीं सोचते, हम सब सोचते हैं, लेकिन जहाँ पे जब इशू आता है तब हम उसको हाईलाइट करना शुरू करते हैं कि नहीं ये सोचता ज्यादा है इसलिए इसको प्रॉब्लम ऐसी हो गई. आप नहीं सोचती हो, मैं नहीं सोचती हूँ, मैं रात में 3 घंटे तक भी कभी कभी उठ के छोटी छोटी चीजें याद आती है ये. बट इट्स लाइक समथिंग दैट वी स्टार्ट मेकिंग आवर ओन स्टोरीज. दैट इज इट. Maybe. Dr. Pyle, we are missing you. Please hurry up and join back because I loved listening to her. And there was this case जो मेरे एक सामने आया एक बच्चे का, because I'm a teacher. उस बच्चे के साथ क्या हुआ, इंजीनियरिंग करने गया और वेरी गुड इंजीनियर, वेरी गुड इंस्टीट्यूट. इनफैक्ट कोविड में घर पे पढ़ा, IIT क्लियर करी. कोविड में घर में ये हालत है that the child is not coming out of the room. He is depressed. He is not talking to anybody. ये हालत है, कोई मिलने अगर कमरे में चला जाएगा तो द चाइल्ड विल लॉक हिमसेल्फ फॉर 3 hours इन द बाथरूम. अगर वो बंदा 3 घंटे बैठा है तो 3 घंटे वो लॉक्ड रहेगा. खाना भी जब सब खा के डाइनिंग टेबल पे से हट जाएंगे तो देन द चाइल्ड विल पीप. चाइल्ड, ही इज जस्ट 21, he'll peep and see अगर कोई है नहीं तब आकर खाएगा, और वो भी थोड़ा बहुत खा के चला जाएगा. एंड द पेरेंट्स आर ओनली क्राइंग बिकॉज इतना छोटा बच्चा भी नहीं है कि डॉक्टर पे जबरदस्ती ले गए. And the child is not ready to visit the doctor. Now what does one do? So you guys can talk about your experiences here कि अगर ऐसा कुछ हुआ या कैसा हुआ, कैसे हैंडल करा. So we are all learning here. Anybody want to share their own experiences or situations around us, because that will give us a lot of resemblance and see कि ऐसा हो रहा है. Dr. Pyle is back. You're in mute, Dr. Pyle. One second, I'll unmute you. Yeah, please. So we started missing you in last 2 minutes. I'm so sorry. Tell me. So we were discussing about the mental health awareness, I guess, last questions, and the answer that it is actually getting better day by day. And we were really happy to the amount of patients that we see. And honestly speaking, from the support in terms of celebrities, professional people like you who are initiating so nice initiatives that people are getting aware day by day, from government, from doctors, there is a lot of sensitivity, meaning लोग अब बात करते हैं. पहले normal
डॉक्टर्स भी डरते थे बात करने में, पेशेंट्स को बोलने में कि शायद तुम्हें डिप्रेशन हो सकता है, पर अभी वो बोलते हैं और भेजते हैं कि नहीं तुम जाओ साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, तुम्हें एक्चुअली इससे हेल्प होगा. Thank you, Dr. Get back to our audience, Meenal. Yeah, so Pragati has written, I think, have we covered that? What would you call a situation when you keep on thinking on a particular event and keep blaming yourself on not taking right action? We've answered that. She's answered it. Ask anybody who wants to ask question. Does anybody want to come in and ask your question? Yasmin, Parul, any, all of us are seeing it like every day. Dr. Payal, do you think जिससे आजकल ये जो सोशल मीडिया पे एक्सपोजर हो गया है, बहुत सारे कारण क्या ये भी बन रहे हैं डिप्रेशन के? See, we were talking about social media. See, किसी भी चीज की excess is not healthy. So अगेन पहले जैसे बोलते थे, बहुत पहले जब वी वर यंग तब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खेलना भी अच्छा नहीं होता, वैसे ही बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार की चीजों का करना अच्छा नहीं होता. तो एक सोशल मीडिया की आना इज अ पार्ट ऑफ नाउ ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. नए जनरेशन का भी ये पार्ट ही है, हमारा भी पार्ट है. तो बस हमको एक बैलेंस क्रिएट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए. हाँ, ऑफ कोर्स उससे क्या एक तरह का एक प्लेजर से अब एक स्ट्रेस भी बनते जा रहा है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं बच्चों को इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो अपलोड करना है, फोटोज अपलोड करने हैं, फिर कुछ वीडियोस डालने हैं, फिर उसमें लाइक्स आने चाहिए, नहीं आता है तो फिर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए, कुछ एक नेगेटिव कमेंट आता है तो बच्चे उदास हो जाते हैं, ज्यादा रिएक्ट करते हैं. और द सेम कांस्टेंट देखते रहना दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर खुद से कंपेयर करना कि अरे यार मेरा लाइफ तो इतना अच्छा नहीं है, देखो वहाँ वेकेशन पे जाके. तो ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ये है ये एक फोटो में एक सिर्फ आपका एक दिखाने का तरीका है कि हम क्या करें हमारी जिंदगी में. हमारा एक इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, बट इट डजंट मीन कि उनका लाइफ का पूरा प्रतिबिंब है वो एक फोटो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ दैट बाउंड्रीज एंड लाइन इन आवर हेड कि मेरा भी जिंदगी खूबसूरत है, सिर्फ एक फोटो से मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम किसी चीज की भी एक्सेस अच्छी नहीं है, तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. तो एक समय होना चाहिए जब हम सोशल मीडिया पे रहे, एक समय होना चाहिए जब हम फैमिली के साथ रहें, फ्रेंड्स के साथ रहें, बाहर जाएं, एक्चुअल गेम्स खेलें, नॉट जस्ट गेम्स जो इंटरनेट पे PUBG एंड the other games. So we need to do all those things to create that kind of balance. Thank you, Dr. Payal. We have another question. We want to bring Aarti Sareen in. She has a question, I guess. Aarti, I'm unmuting you. Okay. Great, thank you. Dr. Payal, I have a quick question for you. So sometimes, in general, we cannot draw a thin line between saying that I am feeling stressed, whether it's because of my job, whether it's because of my personal relationships, or maybe because of some other personal issues in my immediate environment. So I would like you to give us more concrete definition in about depression versus what is something that we can generally say what stress is all about, and if there are any caregivers or the family members, I think there should be some guidelines that how they need to treat the person who is suffering from it. So if you can just go ahead and help us there and show us some light. Definitely. See, anything in our life, what exactly stress is, I think that is the most important and a very unknown term that we use every day, stress. What exactly the stress is. So stress is anything under the sun, जिसके कारण you need to make some adjustments, meaning your body and your mind needs to adjust. Or it can be studies, it can be new admission,
it can be marriage, it can be childbirth, it can be job change, it can be difficult work. So anything can be stressful, which needs us to adapt a lot. So first is this stress, any stress under the sun needs us to make certain changes in our mind and body. तो हो सकता है कि we need to change the way we think, or we need to rest a little more, sleep a little more, eat healthy. Yeah, we need to take some breaks in between. So there are a number of factors. Like for example, job is again, jobs are obviously difficult. They are not given just for fun. If you find passion in the job, it's a good thing. But job generally stressful ही होता है. Why? Because आप एक ही चीज monotonously करते हैं और उसमें आपकी performance को evaluate किया जाता है, and there's constant somebody supervising you, which creates a stress in a person's mind. तो वो perception change करना. You need to understand that anything in our life is just not the sole reason that we are alive. It's not the job that we are alive. We're not dependent on it. It's not a family member जिसकी वजह से मेरी जिंदगी चल रही है. It's then we need everything in a balance, and we cannot rely on one thing. This is the reason of my happiness. So once we start relying on one thing and we start identifying my life based on this, if my job is gone, I am gone, I'm worthless, then it's going to be very difficult. If my boyfriend is gone, my life is worthless. It's difficult. Why? Because we're relying on one person. We're shouldering the whole burden on one thing. तो ये चीज समझना जरूरी है कि जिंदगी चलती है, कुछ भी करो जिंदगी चलती है और अच्छी ही चलती है. We need to understand, we need to change our mindset. तो वो स्ट्रेस लगेगा नहीं, लगेगा हाँ ठीक है थोड़ा प्रॉब्लम है बट सोल्यूशन है इसका. If this not, I'll be able to do something else. So maybe a little flexible mindset is required here. Apart from that, how we can really help ourselves and others is to maintain a routine and to have a very healthy lifestyle. Every time from childhood, आपके parents बोलते होंगे time पे खा बेटा, time पे सो, time पे खा, time पे सो. It's important. We don't pay attention to it. We need to eat healthy, sleep on time, exercise to improve our threshold. We need to have other recreational activities, socialize with people, do everything, meaning dance, music, everything is important. We can't live कि एक ही चीज पे मैं सिर्फ जिंदगी concentrate करूंगी. One day or the other, the burnout is going to happen. We are going to get stressful. We are going to feel tired. We are going to get bored. We will not feel like going back to that particular thing. So to avoid all these things, prevention is required. So I hope the stress is not outside, it's here. So sometimes we form नहीं करना है, मुझसे इससे ज्यादा नहीं होगा, I'll do it tomorrow. That is important. Be very assertive. Be very clear. Everything I want in my life and everything is important. So now it's happening in most companies, work from home, things are changing. It has become very difficult for a lot of clients that I see all days, every day. So I feel that we need to put our foot down and we need to understand that everything in this life is important. It's just not one thing that I can rely and live my life on. Thank you, Dr. Payal. So we have another question from Facebook. So are there any watch out signs when it comes to kids and elderly people specifically? See, for a child and elderly, things are a little difficult in terms of understanding because they are not they're not able to express themselves as clearly as an adult can do. So child doesn't still understand that the thought process is still not properly developed, meaning unko abhi bhi wo jo emotions hai to understanding of how do I feel, how to express themselves in a clear stated word, so utna nahi aata hai. And they are still in the process of learning that these are my emotions and it's a natural emotion which is going to stay with us. And the same happens with elderly. Even with elderly, what happens is that we expect कि as they grow older, ऐसा तो होगा ही, body तो दुखेगी, headache तो होगा ही. So all these things थोड़े चिड़चिड़े तो हो ही जाते हैं जैसे they get older. So all these things are not part of aging. We all should age gracefully. Enjoy our days. So we should not expect that just because age is like this, they are going to behave like that. So first is see the routine. How much has the routine changed?
उनके बिहेवियर में कितना चेंज है, क्या वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत इरिटेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनके बिहेवियर में खाना पीना, दिनचर्या, स्कूल वर्क, इंटरैक्टिंग विद द ग्रैंड चाइल्ड, बाहर जाना, फ्रेंड्स को मिलना, सेम एज पीपल को मिलना, वो सब चीजों में कितना डिफरेंस है. Then if you feel that नहीं थोड़ा it is not the way how it was, it is always better to be very cautious when we talk about a child and an elderly, because a lot of time it goes underdiagnosed, and if it goes underdiagnosed वो बढ़ते जाता है अंदर अंदर, और उनकी बच्चे का तो लाइफ मीनिंग it's a growing age, so everything is, this is the foundation years, so we need to address कि उनको फिर एक एक्सपर्ट के पास ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है. Whereas because they're not able to express, तो maybe उनके जो changes हैं वो differentiate करना कि it's a normal part of aging or it is something else. So counseling and treatment will definitely help them. Thank you, Dr. Pal. I'm just absorbing everything you say. You know, eat healthy, sleep on time. ये, you know, the routine changes. ऐसा ये लग रहा है, you know, somewhere our parents are reaching that stage. Somewhere we are also, मतलब हम उसी रास्ते पे ही जा रहे हैं. That, you know, that aging thing and our children and all. Because एक ऐसे ही, you know, again a personal this thing example कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा चिड़चिड़ा है, normal होते हैं कुछ बच्चे cranky हर बात पे रोते रहते हैं. बट सडनली वो बच्चा आपके पास आता है और ये कहता है कि वाई आर वी हियर, मतलब वाई आर वी बोर्न, हमें क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की, एंड ही कम्स एंड टॉक्स टू यू वेरी सीरियसली, सेज दीस सीरियस थिंग सीरियसली. आप कहीं ना एक डर जाते हो कि इज द चाइल्ड ऑल राइट. सो व्हाट डू यू से टू अ पेरेंट हु इज लिसनिंग टू दिस? See, again, it depends on the age of the child. So there is a phase in their life where they start questioning the meaning of their existence, of everybody's existence, and the reason that we are born, the purpose of why we are here, the purpose that we are here to serve. तो वो एक phase होता है where they want to learn and they become very inquisitive about all these things. तो जब वो इस तरह के सवाल करते हैं तो उनका झूठा झूठा जवाब नहीं देना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहानी नहीं सुनानी है, कोई सच्चाई बतानी है कि हम क्यों पैदा हुए, कैसे हुए, क्या पर्पस है, क्यों जीना है, इसका क्या मतलब है, हमें जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करना है. और थोड़ा इरिटेशन, अगेन मैंने जैसे बोला, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा चिड़चिड़ा इज अगेन अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग. सो हमको उनके साथ कनेक्ट करते रहना है, उनकी बातें सुनते रहना है, उसके जवाब देते रहना है. हमें वो अलार्मिंग साइंस देखने हैं, क्या वो कांस्टेंट बात कर रहे हैं मरने की, क्या वो सुसाइडल केसों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किसी काम में, कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ, क्या वो रोते हैं अकेले बैठ के, उनको बॉडी सिम्टम्स, पेट में दर्द, सर में दर्द, कांस्टेंट कहीं ना कहीं पेन, और खुद को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, या तो ये सारी चीजें अगर कलेक्टिवली एक साथ हो रही है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसको मिस आउट नहीं करना है ये सोच के कि ये सिर्फ एजिंग है. बट एट द सेम टाइम you need to answer everything, because this was, all of us have gone through this phase where we have become inquisitive, और ये आता है दिमाग में क्या मतलब है existence का, तो answer yourself. We need to be happy, we need to question, meaning apart from that the purpose is that we need to find the purpose. It is not given to you on a platter. You need to find a purpose, and then the purpose is different for everyone. So that kind of encouragement should come. Yes, Dr. Payal. So, Dr. Payal, Mr. Jashan wants to share his story with us. So, Mr. Jashan, I'm unmuting you. Okay. Thank you, ma'am. Okay, ma'am, actually, I was preparing for civil service examination. As you know, in India, it's the most prestigious and one of the difficult examination. So I was not able to clear up to 3 times now. So for the last year, I cleared the prelims, but not the mains examination. So it is one of the very stressful examination in the world also. We have to study a lot, but I was still not able to clear. But I think that I am still in the way to learning a new things in the process. That's why I keep continuing and persevere it until and unless I find my goal. That's keep me motivating and pursuing my goal. So if I given in the stress and all the things coming to my mind due to thinking and overthinking, then I will not be able to continue my study. That's the thinking keep me going, ma'am.
And thank you. And this platform is also very good for the sharing these things. And thank you, all of you. Thank you, That's Jashan. very encouraging. Sorry. Really. Yes, Dr. Pai, you were saying something. That's very encouraging that even, meaning you are persistently trying and you're encouraging yourself and you're supporting yourself, which is very important. See, as long as you, again, मेरा कहना है कि आप जब तक कोशिश कर रहे हैं, आप खुश हैं आपकी मेहनत से और ये एक्सपीरियंस आप सबसे इम्पोर्टेंट है जो बहुत लोग नहीं समझे जो आपने आज बोला कि मैं रोज लर्न कर रहा हूँ कुछ नया. And every day I'm learning something new. And this is a process, you know, this we need to understand. Life is a process. It's not that a goal we have to reach. We have to learn every day. So that should keep us going. So I hope आपका भी एक्सपीरियंस है सबको encourage करे कि हमें रोज पढ़ना है और रोज कुछ नया सीखना है. Oh, sweet. Meeta, would you like to say something? You're Yeah. mute. Yeah. आप फिर से हो गए mute. Again, yeah. Yeah, Dr. Payal. So I think you beautifully explained everything with a lot of patience. And that is like, I was making my notes. So my takeaway from the show is like, from you is be watchful, talk, invest time, and don't have any stigma around it. And don't hesitate to go to an expert. So that is, I am taking away from it. No. मतलब मुझे तो ये है कि टाइम से मतलब बिगड़ना नहीं है, मुझे टाइम से सोना है और हेल्दी खाना है और अपना थ्रेशोल्ड इंक्रीज करना है ताकि मैं ठीक रहूं. And Dr. Payal, what do you have to say about our platform? Like, obviously you don't have a takeaway from the show, but what would you like to say about your platform? It was very, very interesting. And that was a thank you so much for the opportunity. This was again a new experience for me, from where I've learned a lot today. And honestly speaking, the kind of questions आप लोगों ने आज डिस्कस किए, जो ऑडियंस ने और आप लोगों ने डिस्कस किया, उससे सीरियसली बहुत इंकरेजमेंट मिलता है कि लोग जानना चाहते हैं खुद को. they want to be aware of themselves, they want to work on the psychology, and it's really encouraging for us to work in the field कि this is what we really want, people to talk about their emotions and not just suffer. Even whether it's a small short thing, you need to talk about it. You don't have to take yourself too seriously also, where meaning life is not too serious, we need to enjoy each and every moment. And depression is treatable, and most of the illnesses are treatable. And in mental illness is the same as we have other problems, and we need to don't discriminate against it. Just take care of ourselves and take care of everyone around you, and we all are always there. And thank you. Thank you, Meeta. Thank you, Dr. Payal. You guys were amazing. And thanks to our audience. And we hope and we look forward to some great participation from you guys, because that is what keeps us going. So see you all next Wednesday with another interesting topic. Thank you, guys. Bye. Thank you. Bye.